बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सत्र में we got the experiments of Newton rings. In that experiment, we discussed about the method for obtaining the Newton rings. Today we are going to start, we going to find out the radius or diameter of the Newton rings, bright rings as well as dark rings. So first of all, we will get the condition for obtaining the bright and dark rings. So first of all, you come here. We are seeing it's what it is in convex plane, convex lens, and the film is here. रे ये इंसिडेंट होती है और आफ्टर पार्शियल रिफ्लेक्ट और पार्शियल रिफ्लेक्शन होकर आर आर दिशा में जाती है। यहाँ जब आप देखेंगे, यू आर वॉचिंग, यू आर ऑब्जर्विंग दिस interference from that side, you will get the constructive as well as destructive interference. For constructive interference, for bright rings, we are getting the condition. For this, you are seeing this film is of kind of or known as film of equal inclination, or you may say it is a wedge shaped film. Clear? A wedge shaped, in the wedge shaped film you are seeing the path difference we obtained between R1 and R2 reflected rays. This is delta equals to what? Twice mu t cos r plus theta minus lambda by 2. You are seeing here. अगर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस है तो आई इज इक्वल टू जीरो होगा और आर का मान भी जीरो होगा, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा है तो थीटा का मान भी बहुत छोटा, ये थीटा का मान भी बहुत अल्प होगा, ये अल्प होगा तो यू में एज्यूमेट जीरो। सो आर का मान जीरो हो गया, थीटा का मान भी जीरो हो गया, तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बचेगा, डेल्टा बराबर ट्वाइस म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। कॉस का मान क्या हो जाएगा, एक। ये बात फॉर ब्राइट रिंग्स डेल्टा बराबर क्या होता है, एन लैम्डा, और फॉर डार्क रिंग्स डेल्टा जो कंडीशन होती है वो क्या होगी, ट्वाइस एन माइनस वन लैम्डा बाई 2। you put here this delta is twice mu t minus lambda by 2 is equal to n lambda, and you are getting twice mu t is equal to n plus half into lambda, and if mu is, अगर ये फिल्म, अगर जो फिल्म है ये एयर की है, हवा की है, फॉर म्यू इज इक्वल टू 1, सो इट इज व्हाट 2t is equal to n, or you may write 2n plus 1 lambda by 2n plus 1 2n plus 1 lambda by here. So it is the condition for getting the constructive interference or Newton rings. For dark rings, delta is equal to what? Twice n minus 1 lambda by 2। कि विनाशी व्यतिकरण की जो शर्त होती है वो क्या है, पथांतर का मान R1 और R2 के बीच में ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। अतः डेल्टा का मान जब आप रखेंगे ये ट्वाइस म्यू t माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यू आर गेटिंग दिस और लैम्डा बाई 2 कैंसिल्ड आउट फ्रॉम बोथ साइड्स, and twice mu t is equal to 2 to cancel is equal to L। अगर ये एयर की फिल्म है then mu would be what, it is 1, 2tn is equal to L। Clear? So these equation number 1 and equation number 2, these are the conditions for obtaining the constructive and destructive interference respectively. Now we comes to find out the diameter of these rings. First of all, we are taking the bright rings. So for bright rings, we know the condition is what, equation 1, 2tn is equal to this one, and you are before going forward, we are taking this one, because you know
the plano-convex lens is a part of the whole solid glass स्फीयर, और इस स्फीयर में से ये इसका सेंटर है, ये कैपिटल आर होगा, तो ये यहाँ से आकर कैपिटल आर होगा, ये Tn है, और r में से आप ये बताएंगे कि यू आर गेटिंग r माइनस Tn, दिस इज r माइनस Tn, और ये क्या है, माना n भी बल है, आपको बल कहाँ प्राप्त होगी, इसको यहाँ पे प्राप्त होगी, इस जगह पर आप कहाँ से देख रहे हैं, इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तल में आपको संकेंद्रीय वलय प्राप्त होगी, और जिनकी प्रत्येक की थिकनेस क्या होगी, एक जैसी होगी, और जो वलय प्राप्त होंगी यहाँ पर वो जैसे जैसे क्रमांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी थिकनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। माना कि जैसे ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसी आपको प्राप्त होगी, यहाँ पर ये माना एनवी आपको रिंग प्राप्त होती है, एनवी रिंग की जो रेडियस है, सपोज इट इज Rn, और Tn क्या है, थिकनेस, ये Tn होगा, तो ये भी Tn होगा, ये भी Tn होगा, ये पूरी R है यहाँ से यहाँ तक, ये R में से आप Tn घटा दोगे तो क्या बचेगा, R माइनस Tn। नाउ इस ट्रायंगल को आप यूज करेंगे OAB को यूज करेंगे तो OA स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। थोड़ा सा जूम करके देखें इस चीज को, आप देख पाएंगे इस ट्रायंगल में देखेंगे आप कि यहाँ पर OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, OA का मान क्या है, R स्क्वायर, कैपिटल R इज व्हाट, द कर्वेचर, रेडियस कर्वेचर, कैपिटल R माइनस Tn, OB, ये क्या हो गया Rn, तो ये आप यहाँ रखोगे तो कैपिटल R स्क्वायर से कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2RTn प्लस R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, या ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर, जो चीज बचेगी वो आप देखें यहाँ पर ये यहाँ से क्या बच रहा है, देखिए आप 0 बराबर माइनस 2RTn प्लस Tn स्क्वायर प्लस R, क्योंकि Tn जो है, Tn क्या है, थिकनेस ऑफ फिल्म, इसकी जो मोटाई होती है 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है, वर्क करेंगे 10⁻⁻12 मीटर होगी, 12 मीटर बहुत कम होती है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो Tn स्क्वायर को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ये आपने इग्नोर कर दिया, क्या बचा Rn स्क्वायर इक्वल टू 2RTn, क्लियर, ये चीज है। अब आपके पास क्या क्या चीज है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ये आपने पहले प्राप्त कर लीजिए। आपके पास आप देख पा रहे हैं कि ये समीकरण नंबर 1 ये रखे हुए नीचे, ये देखिए आप, ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, ये देखें समीकरण 1 2Tn वाला, समीकरण नंबर 2 इसको कहाँ रखने जा रहे हैं, इसको रखने जा रहे हैं अपन ये थोड़ा सा ऊपर, अब आप देखें इसको यहाँ रख रहे हैं, 2Tn बराबर क्या है, 12 प्लस 1 प्राप्त हुआ था, और इस 2Tn का मान यहाँ रखना है, ये 2Tn के मान को आप यहाँ रखने जा रहे हैं, इससे किस जगह, Tn के मान को यहाँ रखने जा रहे हैं, यहाँ रख दोगे आप Tn के मान को, तो Rn स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, R12 प्लस 1 λ/2, और R बराबर ये आ जाएगा, और डायमीटर क्या होता है, उसका डबल होता है, तो Dn बराबर क्या आ जाएगा 2Rn, और 2 का इस फिगर नंबर 3। अब आप आ जाइए डार्क रिंग्स के वलय के लिए, डार्क वलय की शर्त क्या है, 2Tn बराबर n लैम्डा, 2Tn बराबर n लैम्डा
और इसको देखिए आप, इसमें 2tn का मान यहाँ रख दो तो क्या मिलेगा आपको, कैपिटल R इंटू एल एन। तो आर एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, आर एन लेमडा। आर एन का मान निकालोगे तो क्या आ गया, ये रूट आ गया, और इसका डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये डायमीटर आ जाएगा, डीएन का मान निकालोगे। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं कि आप न्यूटन वलय प्रयोग के द्वारा आप ये पूरी चीज ज्ञात कर सकते हो कि चमकीली, सबसे पहले चमकीले और काले वलय प्राप्त करने की प्रायोगिक विधि क्या है, एक्सपेरिमेंटल जो पहले जिक्र किया था वो आपको जिक्र करना है। फिर उसके बाद आपको ये व्यधिकरण प्राप्त करने के चमकीले और काले वलय के लिए आपको शर्त निकालनी है। शर्त निकालने के बाद आपको इस चित्र की सहायता से ये चीज, ये संबंध नोट करके रखना है, आर एन स्क्वायर बराबर 2tn होता है। फिर इसके ये आर एन, तो हम 2tn का मान जब ये वाला रख देंगे आप तो आपको चमकीले वलय का प्राप्त हो जाएगा। इस 2tn में जब आप काले वलय का की शर्त का मान रख देंगे तब आपको काले वलय का व्यास प्राप्त हो जाएगा, dn। अब इनकी सहायता से ये ज्ञात करेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन वलय प्रयोग के अनुप्रयोग क्या है। जब आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज सब चीज निकालेंगे कि न्यूटन वलय की सहायता से किस तरीके से आप इन चीजों को प्राप्त, एप्लीकेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।